आपको क्या इन सारे शब्दों के मीनिंग्स अच्छे से आते हैं? नहीं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्ते। आज का जो पहला शब्द है वो है नेसेंट। अगर कोई चीज़ अपने अर्ली स्टेजेस पे हो या फिर शुरुआती स्टेजेस पे हो तब हम कहते हैं कि वो नेसेंट स्टेज पे है। इस शब्द के दो वैलिड प्रोनाउंसिएशंस हैं। एक है नेसेंट जो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, एंड दूसरा वाला जो प्रोनाउंसिएशन है वो है nascent. For example, their nuclear program is still in the nascent stages. The fund management industry in the country is still at a nascent stage. By one of the most nascent in the world. Next word जो है वो है contemplate. Contemplate एक verb की तरह यूज़ किया जाता है. So just like any other verb, contemplate के भी different verb forms होते हैं depending on how you are using it. So ये verb forms है of contemplate. कॉन्टेम्पलेट मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचना या फिर किसी चीज़ की तरफ काफ़ी टाइम लगा के थरली केयरफुली देखना। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है कॉन्टेम्पलेट। और ये शब्द भी फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। थिंक अबाउट द टाइम जब हम लोग स्कूल में थे और कोई शरारत करते थे एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू स्कोल्ड अस। वो बोलते थे कि तुम सोचो तुमने क्या किया। सो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेट योर एक्शंस। I'm contemplating going abroad for a year. He sat there contemplating his fingernails. So पहला दो जो examples था उसमें contemplate was being used to talk about thinking about something carefully. Whereas जो third वाला meaning है उसमें it refers to staring at the fingernails for a long time. Contemplate your imminent death. To contemplate our history. अब कुछ words सीखेंगे जो contemplate से related है. Contemplative ये एक adjective है और इसका मतलब होता है thinking quietly and seriously about something. There are two valid pronunciations of this word. One is contemplative, and the other one is contemplative. And ये word भी formal situations में use किया जाता है. For example, he was in contemplative mood. मतलब वो जिस mood में था उस mood में वो किसी चीज़ के बारे में seriously सोच रहा था. That just sounds like Mr. Spock in one of his contemplative phases. और दूसरा जो रिलेटेड वर्ड है वो है कॉन्टेम्पलेशन। ये एक नाउन है। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोचते हैं उसका जो एक्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेम्पलेशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉन्टेम्पलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द मंक्स डेडिकेट देमसेल्व्स टू अ लाइफ ऑफ प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन। The contemplation moves me very deeply. I need time for quiet contemplation. नेक्स्ट जो शब्द है वो है परमिएट। परमिएट एक वर्ब है एंड सिंस इट इज़ अ वर्ब इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है परमिएट। और इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वी विल लुक एट सम सेंटेंसेस एंड देन इट विल बिकम क्लियरर। Dissatisfaction among the managers soon permeated down to members of the workforce. Dissatisfaction with the government seems to have permeated every section of society. So in these two examples, we are talking about a feeling, that is dissatisfaction, and how it has spread throughout the organization. The odor, that is the smell of burning rubber, permeated the air. यहाँ पे जो स्मेल है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. Is there nothing that can permeate your impervious puss? Couple of related words. पहला वर्ड है permeable. Permeable एक एडजेक्टिव है और अगर हम लोग बोले कि कोई चीज़ permeable है then we mean that that particular thing allows liquids or gases to pass through. For example, certain types of sandstones are permeable to water. और एक शब्द है permeability. Permeability ये एक नाउन है और किसी चीज़ का permeable होने का जो ability है हम लोग उसको कहते हैं permeability. For example, sand has a high permeability. The next word is vivacious. Vivacious. And ये एक adjective है. अगर हम बोले कि somebody is vivacious, हम मीन कर रहे हैं कि they have a lively, attractive personality. Usually ये जो शब्द है इसको women के लिए यूज़ किया जाता है. And this is a positive trait जैसे happy, joyful वो सब जैसे पॉजिटिव ट्रेट्स है. विवेशियस भी एक पॉजिटिव ट्रेट है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड 3 प्रिटी विवेशियस डॉटर्स. शी वॉज डार्क हेयर्ड एंड विवेशियस. विवेशियस जो है इसके साथ एक कॉमन कॉलोकेशन है पर्सनैलिटी.
शी हैज़ अ विवेशियस पर्सनैलिटी, मतलब शी हैज़ अ लाइवली पर्सनैलिटी. Witty? She's vivacious? Let's look at some related words. Vivacity. Vivacity मतलब होता है the quality of being vivacious. ये एक noun है. इसका pronunciation है vivacity. 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 For example, he was struck by her vivacity, humor and charm. I like to enter the kitchen in the morning with vivacity. और एक related word है vivaciously. 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 And इसका मतलब होता है in a lively, attractive, energetic, enthusiastic way. For example, there is his sister vivaciously laughing for the camera. How is she laughing? Vivaciously. So vivaciously is talking about the action, that is laughing. Next जो word है वो है paradigm ना, इसका correct pronunciation है paradigm. 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 जो G है वो silent है इसमें. And when I was in school, I came across this word for the first time back then, and I used to call it paradigm, which is like so embarrassing now that I think about it. Anyway, so paradigm एक noun है, and paradigm means a model of something. मतलब किसी चीज़ का अगर कोई परफेक्ट उदाहरण होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो पैराडाइम है. ये शब्द एडवांस लेवल का है, जैसे IELTS TOEFL जो टेस्ट्स होते हैं वहाँ पे ये शब्द आपको सुनने में बहुत मिलेगा. बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में या फिर इकोनॉमिक्स वाला जो होता है ना, एनवायरनमेंट लाइक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या जो भी बोलो, उन कॉन्टेक्स्ट्स में ये बहुत सुनने को मिलेगा. सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स विथ दिस वर्ड. सम ऑफ दीज एजुकेटर्स आर होपिंग टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द करंट कल्चरल पैराडाइम. His ruthless accumulation of wealth stands as a paradigm of greed in the business world. The company is seen as a paradigm of entrepreneurship. It's a completely different paradigm. A paradigm of intelligence, fortitude, and... Now, if there is any term that is more popular than the word paradigm, it is paradigm shift. Paradigm shift. Paradigm shift एक noun है. एंड हम लोग पैराडाइम शिफ्ट तब बोलते हैं जब हम लोग किसी एक टाइम के बारे में बोल रहे हैं जहाँ पे जो परफेक्ट उदाहरण है वो जब बदल रहा हो, तब हम लोग कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी कम्युनिकेट. पहले हम लोग जैसे कम्युनिकेट करते थे उसका जो परफेक्ट उदाहरण था जैसे चिट्ठी लिखना एंड ऑन दैट. नाउ विथ सोशल मीडिया वो कम्युनिकेट करने का जो मॉडल है वो बदल गया है पूरा. सो देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ओवरहॉल, कंप्लीट चेंज इन द वे वी कम्युनिकेट, एंड सो वी कैन से देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट. आवर सोसाइटी हैज़ अंडरगॉन अ पैराडाइम शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू फैमिली स्ट्रक्चर्स. पहले जॉइंट फैमिलीज बहुत होते थे, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हैं. सो देयर हैज़ बीन अ मेजर चेंज एंड वी कैन से दैट देयर हैज़ बीन अ पैराडाइम शिफ्ट. Yes, but our society has undergone a paradigm shift. Well, that's a real paradigm shift. और एक वर्ड जो पैराडाइम से रिलेटेड है वो है पैराडिग्मैटिक. 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 पैराडिग्मैटिक एक एडजेक्टिव है, एंड हम लोग किसी चीज़ को पैराडिग्मैटिक बोल सकते हैं इफ़ इट एक्ट्स एज अ मॉडल और एग्जाम्पल फॉर समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, देयर ग्रेट एकेडमिक सक्सेस वॉज परेडेड एज पैराडिग्मैटिक. मतलब उन लोगों का जो एकेडमिक सक्सेस था वो एक परफेक्ट उदाहरण की तरह उसको सब लोग बोलते थे कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए. दैट्स व्हाट इट मीन्स बेसिकली. पैराडिग्मैटिक का एक लिंग्विस्टिक्स वाला भी मीनिंग है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड एक मीनिंग है, रिलेटिंग टू द वे डिफरेंट वर्ड्स और लैंग्वेज आइटम्स कैन बी चोजन टू प्ले अ पर्टिकुलर पार्ट इन अ लैंग्वेज स्ट्रक्चर. मतलब डिफरेंट शब्दों को कैसे यूज़ किया जाता है सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट. जिसका मतलब होता है कि अगर कुछ शब्द हैं जो एक साथ में बैठते हैं ऑन दैट, सो उसका जो रिलेशनशिप होता है, ओके, सो उसके बारे में पैराडिग्मैटिक इज यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट. नाउ दैट रैप्स अप दिस वीडियो. मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो शब्द हैं इनको नोट डाउन किया है किसी पेपर में, किसी डायरी में, कहीं पे. just revise the words, like go through the words after a couple of days and try to form some sentences with them. Actually, you know what, form a sentence with each of the words right now. That will significantly help you in remembering these words. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर ठोक दो, एंड किसी को जानते हो जो इससे बेनिफिट कर सकता है देन शेयर दिस वीडियो विथ देम. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. एंड अगर कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस है देन कमेंट सेक्शन तो खुला है तुम्हारे लिए. I'll see you in the next video.
टेक केयर एंड नमस्ते.